Good morning, class. Good morning, Good morning, everyone. Good morning, everyone. So, class, today I am going to explain oxidation state rules. So, oxidation state rule. ऑक्सीडेशन स्टेट रूल में आपको क्या दिया है? फर्स्ट रूल आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, हेलोजन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. हम कैमरा को ऊपर बोल दीजिए, सब ऑफ है एक तरफ से 2-4 मिनट। What is the oxidation state of all halogen atom is -1. Halogens means chlorine, bromine and iodine. These are the halogens. Iodine. Next, second rule. Oxidation state of all the elements which occur in free or combined state. ठीक है, free state वाले element, free और combined state. Okay, combined means that they combine with themselves, खुद के साथ combined उन एलिमेंट की बात कर रहे हैं और जो फ्रीली अकर होते हैं. फ्रीली मीन्स जैसे नॉर्मली सोडियम अकर हो, सिंगल एलिमेंट हो, क्लोरीन हो, ठीक है, और कंबाइंड में H2O2, all the gases comes under combined state, Cl2 N2. इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0. All the elements which occur in free or combined state have oxidation number 0. ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 होगा. This is the second rule. Now third rule. मीन्स बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ये अब इनके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स एलिमेंट दैट कैरी चार्ज. अब वाटर है H2, it carries charge, it carries positive or negative charge. Is it possible? सिग्नल? Yes, possible. बेटा H2 आपका नहीं लेगा चार्ज, H2 मॉलिक्यूल है. H2 अगर यहाँ पे H और H लगा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव? हाउ यू कैन डिफाइन इट? Molecules are मॉलिक्यूल डू नॉट कैरी चार्ज. बेटा जितने भी गैसेस होते हैं H2O2 Cl2, इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है. यहाँ पे देखो negative charge. विच वन बेटा? Iron oxidation. हाँ, आयंस का आप बता सकते हो. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Na+, तो इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होगा +1, O2, O आपका 2- होता है तो -2. These are the oxidation state of that ion. ठीक है, but in case of molecule जैसे H2O2 Cl2, अब how we can define it is positive or it is negative? This is not possible in case of gases because they form covalent bond. We will read covalent bond in chapter 4. So keep it in your mind that H2O2, all the gases in molecular form do not carry any charge. They are neutral. And single आपका कोई भी एलिमेंट अगर होता है फ्री स्टेट में, जैसे Na, it doesn't carry any charge, so it is neutral. ठीक है, ये आपका न्यूट्रल होगा. क्लोरीन के पास भी कोई चार्ज नहीं, तो it is neutral. So all the elements which occur in free or combined state having oxidation number 0. Is it clear? Yes. Okay. Now come to third point. Third rule. The oxidation number of oxygen
number of oxygen is always 2 -2. Okay, but in higher class you will read peroxide. ठीक है, आप higher class में 11th में पूरा चैप्टर उसमें आप और भी पढ़ोगे. आपकी सिलेबस में अभी ऑक्सीजन है -2, so I will explain this. Fourth rule, oxidation number is equal to the charge of ion. Example, suppose sodium carries single positive charge, so its oxidation number is +1. Aluminum, it carries +3 charge. अगर आपका रिएक्शन में इस तरह लिखा होगा Al+3 react with any reactant, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +3. ओके, इज इट क्लियर? फ्री स्टेट मींस नॉर्मल आपका सोडियम हो, फ्री स्टेट में सिंगल एलिमेंट हो, नो कैरी नो चार्ज, then it is neutral. But if it carries any charge, positive or negative, whether positive or negative, then we have to write, जैसे in case of sodium we have to write +1, Al+3, the oxidation number of aluminum is +3. Any doubts? No, ma'am. Oxidation number is equal to the charge of ion. Ma'am, this topic is much complicated, so ma'am, please make the video and send it in the group so that we can watch it. Yes, yes, beta. I will send. So it is very easy to understand redox reaction. So fifth point, oxidation number of metal is always positive. ठीक है, पॉजिटिव इस तरह से भी लिखते +Be in chemistry, but don't write like this in your board exam. ठीक है, पॉजिटिव में आपका क्या होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो उसका पॉजिटिव होगा. एग्जांपल, एल्युमिनियम +3, तो इट कैरीज +3 चार्ज. कैल्शियम +2 होता है, तो इट कैरीज +2 चार्ज. और इन केस ऑफ नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल कैरीज नेगेटिव चार्ज. Hydrogen is exception. हाँ, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन. मेटल नॉन मेटल में जैसे ऑक्सीजन, इट कैरीज -2 चार्ज. ठीक है, सल्फर इट आल्सो कैरीज -2 चार्ज. सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज इन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज में होते हैं. नेक्स्ट एक्सेप्शन बता दो हाइड्रोजन में. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन when metal plus हाइड्रोजन. ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसमें मेटल और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल NaH. ठीक है, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, इट शोज मेटल और नॉन मेटल बोथ प्रॉपर्टी शो करता है ये. सो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, सोडियम इज अ मेटल. अब सोडियम के तो हम चेंज तो कर नहीं सकते, इसे हम नेगेटिव तो कर नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ मेटल. बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन वी चेंज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हम किसमें लिख सकते हैं, माइनस में भी, बिकॉज एक्सेप्शन प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता है. ठीक है, सो व्हेन हाइड्रोजन, हाँ, सोडियम हाइड्राइड, इस एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्राइड. सोडियम हाइड्राइड में क्या होगा आपका, सोडियम इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. ओके, सिंगल पॉजिटिव चार्ज. और हाइड्रोजन कैरीज सिंगल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अगर मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मेटल और हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन ऑलवेज बिहेव एज नॉन मेटल, सो इट कैरीज नेगेटिव चार्ज. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, लेकिन अगर यही हम बात करें नॉन मेटल में, when non-metal react with hydrogen,
hydrogen. Then what is the charge of hydrogen? जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, then it carries +1 चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा हाइड्रोजन. और आपका नॉन मेटल इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव. ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव हो जाएगा. एग्जाम्पल में H2S. ठीक है, H2S में सल्फर क्या आ जाएगा? इट कैरी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, -2. और हाइड्रोजन क्या करेगा? +1 चार्ज कैरी करेगा. ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. Okay, this is the 6th rule of oxidation number. Now I am going to explain some examples, some chemical equation. Simple example, first I explain simple. Sodium react with chlorine. Chlorine always occur in Cl2 form. ठीक है, because it is a gas and it forms NaCl. So we have to balance it. There are 2 chlorine atoms, so we have to write 2 here. Now sodium is also, number of sodium atom is 2. Okay, so we have to write the oxidation number of these elements. सोडियम के यहाँ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? What is the oxidation number of sodium? Sodium occur in free state. सिंगल एलिमेंट है, फ्री स्टेट में अकर हो रहा है. So what is this? What is the oxidation number of sodium? 0. Yes. 0. Yes, yes, 0. प्लस कौन बोल रहा था बेटा? सोडियम अकर इन फ्री स्टेट. ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है, खुद से ही कंबाइन कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन का भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0. और यहाँ पे आपका सोडियम क्या कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज +1. और इधर आपका -1. ये समझ में आया कैसे +1 और कैसे -1 हुआ? सोडियम NaCl आप लिखते हैं ना, NaCl. सो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 2 8 1. और क्लोरीन का आपका 17 2 8 7. So sodium has tendency to give its 1 electron to chlorine. So सोडियम का क्या हो जाएगा? सोडियम आपका 2 8 हो जाएगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं. और क्लोरीन आपका क्या आ जाएगा? 2 8 8. Now sodium carries positive charge and chlorine carries negative charge. तो सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा? सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा. Then how we can define that which one is oxidized and which one is reduced? यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो दैट वन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. और रिडक्शन में आपका क्या आ जाएगा? जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. बेटा आप लोग पढ़ते हो तो आप बुक और कॉपी और पेन लेके बैठा करो. प्रिपेयर आवर नोट्स. ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन आपका लॉस्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा. ठीक है, जब कोई भी एटम कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा. ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा. Just a minute. गेन होने के बाद सोडियम का ऑक्सीडेशन 10 wait. इज इंक्लूड. इसमें आपका इंक्रीज होगा.
देखो जैसे एग्जांपल ले लें, अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 हो रहा है, सो इट इंक्रीजेस, सो ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्लोरीन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका रिडक्शन। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर तो वो आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सी याद कर लो, एक टर्म याद कर लो, अगर टर्म आपका क्या होगा इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा तो वो आपका ऑक्सीडेशन, और वही आपका अगर डिक्रीज होता है तो वो आपका रिडक्शन। एक ही चीज याद करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लर्न ओनली वन थिंग, 0 से +1 इंक्रीज हो रहा है चार्ज, ठीक है, 0 से +1 चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और क्लोरीन में 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है रेड्यूस होना, घटना, ठीक है। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ। CuO, copper oxide react with hydrogen, then it form water, ठीक है, और आपका ये copper. Now we have to write the oxidation number. How we can say that this substance is oxidized and this substance is reduced? इसमें कौन सा substance oxidized हो रहा है, कौन सा reduce हो रहा है? Is it possible to define? कोई बता सकता है इसमें कौन सा substance आपका oxidized हो रहा है? Reduced to copper. Yes. ठीक है, आप नॉर्मल सा एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड उससे भी टर्म से बता सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रूल अगर आप पढ़ लेते हो तो इट विल वेरी इजियर, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में। जैसे अब आपको पता है कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, कॉपर का कॉपर +2 होता है, ठीक है, कॉपर का चार्ज कितना होता है +2, कॉपर कैरीज +2 चार्ज। ऑक्सीजन चार्ज कितना हो जाएगा, रूल में बताया था ऑक्सीजन का -2। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोजन H2 का आपका 0 हो जाए क्योंकि ये आपका क्या कंबाइंड स्टेट, मतलब आपका न्यूट्रल होता है, इट कैरीज नो चार्ज। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, -2. देखो कैमरा वाले की शेयर को जरा देखो, उसी शेयर उस शेयर where are you शेयर, raise up your hand. so class what is the oxidation number of oxygen in water, can anyone tell me? -2. Yes, -2, -2. And what is the oxidation number of hydrogen? +1. Yes, +1. And what is the oxidation number of copper? Copper का oxidation number, it occurs in free state, it doesn't combine with any other element. So what is the oxidation number of copper? Copper का oxidation number क्या होगा? No, 0. I said 0. यस बेटा 0 होगा, +2 कैसे हो जाएगा, ये कंबाइन ही नहीं कर रहा है तो अपना +2 ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जब कॉपर किसी चीज से कंबाइन ही नहीं कर रहा है, अपना अकेले खुद का एक एलिमेंट है, जब कंबाइन नहीं करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, किसी को नहीं, तो हाउ इट कैरीज पर +2 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख दिया। नाउ वी हैव टू डिफाइन इट विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। सो +2 से 0 कॉपर, +2 से 0, ठीक है, कॉपर आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर
तो ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? डिक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? यस, डिक्रीज। जहाँ टर्म डिक्रीज मतलब रिडक्शन मतलब ये होता है कम होना और ऑक्सीडेशन मतलब होता है ज्यादा बढ़ना, ठीक है। रिडक्शन याद रखना, डिक्रीज और -2 आपका ऑक्सीजन, ये भी -2 है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। 0 से +1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। So ma'am, it's oxidation. वेरी गुड। इस ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। You don't have to learn the rule of oxidation state. ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना एग्जांपल मैं करा दूंगी that you understand how we can write the oxidation state of that element. Now, is it clear to all of you? Yes, ma'am, clear. Okay. Next example. Zinc react with copper chloride CuCl2 and it form zinc combined है किससे? Cl2 से। Zinc chloride plus copper. Now can anyone tell me which type of reaction is this? Which type of reaction is this? Yes, anyone else or कोई अभिज्ञान? Which type of reaction is this? अभिज्ञान? अश्मित मौर्य? Yes, ma'am. Which type of reaction is this? आदित्य प्रताप सिंह, what is displacement reaction? आदित्य प्रताप सिंह, what is displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? बेटा अभी इतना रिसेंटली अभी पढ़ाया है, यू डोंट नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? पीयूष, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मोहम्मद अफजल, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नो, Metal displaces lower reactive metal. It is known as displacement reaction. यस। वर्तिका, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? And displacement reaction is a reaction in which higher active metal displaces lower reactive metal. अनूप कुमार, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Displacement reaction, higher reactive metal displaces the lower reactive metal. यस, वेरी Next गुड। solution. तो रिवाइज ऑल द टॉपिक। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन आपका ये डिस्प्लेसमेंट है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करे, जिंक इज मोर रिएक्टिव। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक? 0. 0. यस, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 हो जाएगा। कॉपर का यहाँ पे जैसे आपको मे बी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग न्यू, कुछ नया बताने जा रहे थे। तो आपको पता है हैलोजन सारे क्या होते हैं? -1 चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। हैलोजन सारे -1, जैसे यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। हैलोजन हम जानते हैं -1 है, कितने हैलोजन है यहाँ पे? 2, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस, ठीक है। कॉपर का हमें नहीं पता है, कॉपर को हम सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पे x सपोज कर लिया। तो अब इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व कर दिए इसी को? x - 2, 2 × 2, ठीक है, -2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर दे? x इक्वल टू -2, जब इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, ठीक है। अगर आपको किसी के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो आप जिसका पता हो उसका लिख दो और दूसरे को x सपोज कर लो। तो वी कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच आई डोंट नो, ठीक है, जिसका हमें नहीं मालूम।
यहाँ पे सिमिलरली क्लोरीन का हमें पता है कितना होता है -1, ठीक है। देयर आर 2 क्लोरीन एटम, तो कितना हो जाएगा x -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज +2, ओके। अब कॉपर का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर Plus +2, Zero. who said +2? Who said +2? you asked. Yes, When it was with it's copper 0. or- Okay, it's okay. It's 0. ठीक है, it's neutral. Copper आपका 0 हो जाएगा. Now we have to find out which one is oxidized and which one is reduced. Zinc oxidation number changes from 0 to +2. Oxidized. Yes, this is And oxidized. oxidized. ठीक है, ये आपका oxidized होगा. कॉपर आपका यहाँ पे कितना था +2 था, ठीक है। +2 से 0 ये आपका Copper is reduction bound. yes. So this is how we can apply oxidation number rule in reaction and we can define redox reaction. अब इसमें oxidation and reduction दोनों हो रहा है. So this is an example of redox reaction. Okay, ma'am. Okay class, I am going to give you some questions. You have to find the oxidation number of that compound. Ma'am, in homework you are going to do. No, no. अभी मैं तुरंत दे रही हूँ. You have to do it right now. H2SO4. You have to find the oxidation number of sulfur. How you can find? What is the oxidation number of sulfur? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यानी प्रताप. ओके. ओके. What we have to find out You the have to find out the oxidation number of sulfur. Ma'am, is it -2? Sulfur -2. Who is saying -2? plastics. Yes, Kashif. और कौन किसे -2 बेटा बोला? Who said -2? Ma'am, Swasti. Swasti. Okay. Ma'am, the correct answer is plastic. Beta, wait. Everyone, let everyone give chance to speak. Ma'am, but I have already told the correct answer. Anyone else? Shreyas, Mohammad Afzal. -2. -2. बेटा अप्लाई करना है. देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ. हाइड्रोजन यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन -2 होगा, ठीक है. हाइड्रोजन यहाँ पे क्या रहेगा आपका? +1 होगा, ठीक है. क्योंकि आप लोग ने मे बी 9 में पढ़ा होगा जब ये ब्रेक होता है तो H+ और आपका HSO4- एक में होता है, ब्रेक होता है, ठीक है. दूसरा इसमें आपका H+ और SO4 में ब्रेक होता है, ठीक है. इसमें ब्रेक होता है. सो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड. इज इट क्लियर? आप बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 और इसको X मान लेती हूँ. नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? Now I have given you a hint. Ma'am, it is
+1. +1 बेटा how is it possible? +1 कैसे आया? Ma'am, I have added the valencies and equalized to 0. बेटा but there are 2 hydrogen atoms, there are 4 oxygen atoms, so you have to multiply it also. Well, ma'am, we'll get +6 only. Yes beta. So okay, I am going to explain. Hydrogen, there are 2 hydrogen atoms, so write 2 here into +1 oxidation number of hydrogen. ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाया. सल्फर, I don't know the oxidation number of sulfur, तो +X. ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, तो we write 4 here. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -2. Now solve it. आप सॉल्व करो. Yes, ma'am. +6 आया. Yes, +6. This is the correct answer. +6 होगा बेटा. Now is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. everyone first understand the rule and apply it in every reaction. आप सभी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रूल को अप्लाई करो, then it is very easy. Don't cram the word. ठीक है, cram में आपको रटना नहीं है कि ऑक्सीडेशन रूल हम रट लें. ठीक है, केमिस्ट्री रटना नहीं. Try to understand. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, class. This is your break period. So thank you, class. I hope Thank I you, clear ma'am. all your doubts.